Welcome students, welcome to maths class. Let's continue our topic, that is we need to write the place value and face value of the color digit. We were doing in yesterday's class as well. हम कल की क्लास में भी बेटा ऐसे कर रहे थे. The question was write the place value and the face value for the color digit, and part D is 9. We are having 9 is the digit जो कि हमारी क्या है बेटा, कलर की हुई है हमने, और उसका हमें निकालना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू. सो फॉर प्लेस वैल्यू एक बार हम रिवाइज करते हैं. प्लेस वैल्यू के लिए हमारे पास हमें क्या करना होता है, digit will be multiplied by the place. We are having digit is 9 and place is 1. So we will multiply place value by place by the digit. So 9 into 1, that is 9. So we will multiply 9 into 1, that is 9 only. The face value of 9 will be 9 because the face value of the digit is the digit itself. Face value क्या होती है, digit ही हमारी वही face value होती है. Next part, place value of 7. We are having 7 on thousands place, on tens place. So we will multiply it by 10. It will be 70. And face value of 7 is 7. Face value of 7 is 7. So we will write place value of 7 is equal to 70 and face value of 7 is equal to 7. The next one is part F. F is place value of 4 because 4 is colored. You can see on the board 4 is colored. So what we need to do, we need to write the place value for 4. 4 is on 100 place. So we'll multiply 4 by 100. That will be 400. Face value of 4 is 4 only because face value का मतलब होता है digit itself. Then the last one part G is face value of 8. 8 is on 1000 place. बेटा 8 कौन से place पर है, 1000 place पर. So we'll multiply 8 by 1000. That will be 8000. So face value is 8 and place value is 8000. Place value is 8000. Here place value and face value. Now move to the next question. Question number 2. Write the place value of each digit. In this question beta, we were talking about the place value of one digit only. But in this question, we will talk about the place value of each digit. हम हर एक digit की place value लिखेंगे. So write the place value of each digit. अगर question इस तरह से है तो आपके पास place value chart बना हुआ होगा, और अगर नहीं बना हुआ होगा तो आपको बनाना पड़ेगा. ऊपर हमें places दे रखे हैं, then हमें digits दे रखी हैं. Now what we need to do, we will write according, first we will write the digits and then we will multiply with places. तो हमने digits लिखी हैं. I'm going to erase it और मैं दोबारा से लिखता हूं आपके सामने जिससे कि आपको और अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हम digits लिखेंगे 3, 7, 4. सबसे पहले बेटा हम digits लिखेंगे. सबसे पहले हम लोग digits लिखेंगे. digits हमने लिखे हैं 3, 7, 0 and 4. We are having 4 digits. Now we will write the sign of multiplication. अभी बेटा हम अकॉर्डिंग टू प्लेसेस यहां मल्टीप्लाई करेंगे. 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, क्योंकि 4 हमारा 1000 प्लेस पर है. 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है. 0 will be 0 only, क्योंकि हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 0 will be 0 only. तो 0 का तो 0 ही रहेगा. 7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. 3 ones are 3, 7 tens are 70, 0 are 0, और यहां पर 4000. आई होप आप सभी को हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना आ गया है.
इसी मेथड से बेटा हम सेकेंड पार्ट करेंगे. वी आर हैविंग अ नंबर दैट इज 3975. सो 5793 हमने कहने चारों डिजिट्स लिखी और फिर अकॉर्डिंग टू प्लेसेस उसमें मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके 5 1s are 5, 7 10s are 70, 900s are 900 and 3000s are 3000. तो इस तरह से हमारे आंसर्स आते. I hope बच्चा you all have understood the concept of place value. Place value का concept आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. Tomorrow we will do another topic that is expanded form. ये जो place values होते हैं बच्चा, इन place values की help से ही हम expanded form भी बनाते हैं. place values हमें बताते हैं कि हम नंबर को रीड कैसे करें और प्लेस वैल्यू चार्ट बताता है कि रीड कैसे करें और प्लेस वैल्यूज बताती हैं कि उन नंबर्स की पोजीशन, उन नंबर्स की वैल्यूज है क्या, है ना, वो नंबर क्या वैल्यू रखता है. और जब हम उन नंबर्स को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं वो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है. जैसे अगर हम इसी नंबर को लिखते हैं यहां पर 4000 0 70 and 3 और इन्हीं इस पूरे नंबर्स में ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हैं अपने इस तरह से, लास्ट से प्लेसेस वाइज हमने नंबर लिखे हैं. हमने हर एक प्लेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है और उसके बाद में हम इनमें अगर एडिशन का साइन पुट कर देते हैं तो हमारा वही नंबर आ जाता है जो नंबर हमें दिया हुआ है, वही सेम नंबर आ जाता है. तो ये जो फॉर्म है जिसमें हमने नंबर को एक्सपैंड किया है, इस नंबर को हमने यहां पर एक्सपैंड कर दिया, खोल दिया है, बड़ा कर दिया है, दैट इज कॉल्ड आर एक्सपेंडेड फॉर्म. दैट इज आर एक्सपेंडेड फॉर्म. और ये हमारी कैसी है, ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. दैट इज आर स्टैंडर्ड फॉर्म. We will learn about expanded form and standard form in the next class. Today you need to practice for place value, face value की आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे and if it will be done आप लोग अपना नोटबुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे, अपना बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे. बेटा आप लोगों के कंपाइल्स मार्केट में आ चुकी हैं, आप लोग मार्केट से कंपाइल परचेज कर लीजिए. बहुत सारे बच्चों के पास मैथ्स की बुक नहीं है. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली परचेज मैथ्स बुक्स. नाउ इट इज अवेलेबल in market. You can purchase from there. Okay, till then stay home, stay safe, no need to go outside. Bye bye, have a nice day.